محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی. خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو. فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں بہتر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھگڑے کے وقت جھوٹ بولنا چھوڑ دے حالانکہ وہ نہ حق پر ہے، اس کے لیے اطراف جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا. اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک مکان بنایا جائے گا. اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے بنائے، اس کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا. آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. ایم ایل سی انتخابات کی تمام تر تیاریاں مکمل. کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے. ضلع کلکٹر. ہزار لیٹر خدیم سیندی کی فروختگی پر ٹاسک فورس کے عہدیداران کا سیندی شاپ پر چھاپہ. مینیجر کو کیا گرفتار. نارتھ تحصیلدار کی مبینہ طور پر مسلم طبقے کے متعلق زہر افشانی پر ایم آئی ایم وفد کا احتجاج. نازیبا ریمارکس کی شکایت. اب خبریں تفصیل سے. قانون ساز کونسل کے گریجویٹس اساتذہ کے انتخابات کی پولنگ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے. پولنگ عملہ 26 تاریخ کی شام سے قبل بیلٹ باکس اور ووٹنگ کے دیگر سامان کے ساتھ الاٹ کیے گئے پولنگ مراکز پر پہنچ جائیں گے. ضلع کلکٹر کا بیان. ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کہا کہ نظام آباد ضلع میں اس ماہ کی 27 تاریخ کو ہونے والے قانون ساز کونسل کے انتخابات کے پولنگ کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے. انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل کو پرامن اور شفاف ماحول میں بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے جاری رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے. ضلع میں مقننہ گریجویٹ حلقوں کے لیے 31,571 ووٹر اور اپادھی حلقوں کے لیے 3,751 ووٹر ہیں. کلکٹر نے کہا کہ اس مقصد کے لیے ضلع میں 81 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے، جن میں گریجویٹ حلقے کے لیے 48 پولنگ اسٹیشن اور اساتذہ طبقے کے لیے 33 پولنگ اسٹیشن شامل ہیں. انہوں نے بتایا کہ 33 منڈل مراکز اور میونسپل ٹاؤنز میں رائے دہندوں کی تعداد کے حساب سے پولنگ مراکز دستیاب کرائے گئے. ووٹروں کی سہولت کے لیے تقریباً ایک ہی احاطے میں اساتذہ کے لیے پولنگ اسٹیشن کا انتظام کیا گیا. ہر پولنگ سینٹر میں 4 افسران، 1 پی او، 1 اے پی او اور 2 پی اوز پر مشتمل ایک ٹیم پولنگ کے عمل کو چلائے گی. 81 پولنگ مراکز کے لیے مناسب پولنگ عملہ تعینات کیا گیا اور 20% اضافی عملہ بھی ریزرو میں رکھا گیا اور انہیں پولنگ کے عمل کے انتظام کے حوالے سے ماسٹر ٹرینرز کے ذریعے 2 مرحلوں میں تربیت دی گئی. انہیں پولنگ کے عمل پر کڑی نظر رکھنے کی تربیت بھی دی گئی. انہوں نے کہا کہ پولنگ عملہ 26 تاریخ کی شام سے پہلے بیلٹ باکس اور ووٹنگ کے دیگر سامان کے ساتھ الاٹ کیے گئے پولنگ مراکز پر پہنچ جائیں گے اور پولنگ کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے. اس مقصد کے لیے نظام آباد آرمور RDO آفس اور بودھن سب کلکٹر آفس کے احاطے میں تقسیم مراکز قائم کیے گئے. کلکٹر نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کی سہولت اور دیگر تمام انتظامات کیے گئے تاکہ پولنگ عملہ وہاں سے بیلٹ باکس اور سامان لے کر وقت پر پولنگ مراکز تک پہنچ سکے. پولنگ کے بعد بیلٹ باکس کو سخت حفاظتی انتظامات میں کریم نگر کے استقبالیہ مرکز میں لے جایا جائے گا. ایم ایل سی الیکشن کے دوران انتخابی اخراجات کی کوئی حد نہیں. انتخابی قواعد کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے. پولنگ کا عمل 27 تاریخ کو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گا.
और जिन राय दहिंदों का एमएलसी इलेक्शन में वोट है वो बगैर किसी लालच के आजादाना माहौल में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। दर्रे असना ये वजाहत की गई कि मंगल को कलेक्ट्रेट में एक वोटर असिस्टेंट सेंटर कायम किया गया ताकि वो मुलाजमीन जिन्हें इलेक्शन ड्यूटी सौंपी गई पोस्टल बैलेट के जरिए अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सके। టోటల్గా 81 పోలింగ్ స్టేషన్స్ కూడా మనకి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. పోలింగ్ సిబ్బంది కూడా మనకి ఈచ్ పోలింగ్ స్టేషన్కి 1 PO, APO, 2 OPOs ఉండే విధంగా కూడా మనము సిబ్బంది మొత్తాన్ని కూడా ఆల్రెడీ 2 ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. రేపు మనకి డివిజన్స్లో డివిజన్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో మనకి సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ అండ్ 2 RDO ఆఫీసెస్లో కూడా రేపు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. వన్స్ పోలింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పోలింగ్ POs, APOs అండ్ పోలింగ్ సామాగ్రి కూడా పోలింగ్ మెటీరియల్ కూడా డైరెక్ట్గా మనకి కరీంనగర్కి వెళ్ళే విధంగా కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం జరిగింది. ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో మనం ముఖ్యంగా నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ని తీసుకోవడం వల్ల ఓన్లీ గ్రాడ్యుయేట్స్కి సంబంధించి ఈ పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ అనేది మనకి ఉన్నాయి. సో టోటల్గా మనకి 255 పోస్టల్ బ్యాలెట్కి మనకి అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఆ పోస్టల్ బ్యాలెట్ కూడా ఈరోజు అంటే 25th మనకి IDOCలో కలెక్టరేట్లోనే మనకి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ప్రక్రియ మార్నింగ్. हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान के घर पहुंचकर उनकी इयादत की और अफजल बेग तेजान की जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहत याबी के लिए मोहम्मद अली शब्बीर ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमती मुशीर खास बराए SC, ST व BC माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन के हमरा सदर सदाए उर्दू सोसाइटी मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान के क़यामगाह वाक़ बोधन रोड पहुंचकर मुलाकात के जरिए उनकी इयादत की। इस मुलाकात के मौके पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान की मौजूदा सेहत से मुतल्लिक़ सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मुलाकात के मौके पर अफजल बेग तेजान की जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहत याबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इस मौके पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हमरा लुड़ा चेयरमैन केशवेनु, साबिका डिप्टी मेयर MA फहीम, साबिका सदर वक्फ बोर्ड निजामाबाद मोहम्मद जावेद अकरम, N रत्नाकर, सीनियर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस, साबिका कॉर्पोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान, मसूद अहमद, एजाज, शब्बीर रजवी व दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन मौजूद थे। टीबी के खात्मे के लिए खास तौर पर इंजेक्शन दस्तयाब है। हुकूमत टीबी मर्ज से मुतासरा मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम करेंगी। डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर D नागेश्वरी का बयान। जिला टीबी कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर D नागेश्वरी ने डिप्टी DMHO डॉक्टर रमेश के हमरा सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर वेलपुर मंडल में टीबी से मुतल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। खांसी और गले की खराश वाली आवाम से कहा कि वो इसको नज़रअंदाज किए बगैर सरकारी अस्पताल से रब्ता करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मर्ज से मुतासरा मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम करेंगी। हाल ही में टीबी के खात्मे के लिए एक खुसूसी इंजेक्शन दस्तयाब कराया गया। टीबी के मरीजों से गुजारिश की कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इस प्रोग्राम में मंडल मेडिकल डायरेक्टर, अस्पताल अमला, आशा वर्कर्स दीगर भी मौजूद थे। టీబీ పేషెంట్లు తెలుసు దగ్గుతుంటే రక్తము తెమ్మడ పడుతుంటుంది. అది మామూలుగా టీబీ ఉన్న పేషెంట్లు అది లక్షణాలతో జబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అన్నమాట. అది లేకుండా కూడా లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి ఎట్లాంటి సిమ్టమ్స్ లేకుండా ఉండే మనుషులు ఉంటారు. దాంతో మనకేం కాదు. ఫ్యూచర్లో మనం ఎప్పుడన్నా వీక్ అయితే మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఏమైనా దెబ్బతింటే అప్పుడు మన లోపల కూడా డిసీజ్ బయటపడుతుంది. అట్లా ఎవరికి ఉన్నది ఏం లక్షణాలు లేకుండా శరీరం లోపల దాగున్న డిసీజ్ను గుర్తుపట్టడానికి మనం ఈ టెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇవాళ. निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा के हुक्म पर टास्क फोर्स के एहलकारों ने कल्लू डिपो सेंधी शॉप पर छापा मारा और मैनेजर को अहकामात की खिलाफ वर्जी पर किया गिरफ्तार। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा के हुक्म पर टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर अंजैया और स्पेशल पार्टी के एहलकारों ने थर्ड टाउन पुलिस स्टेशन के तहत कंटेश्वर में कल्लू डिपो सेंधी शॉप पर छापा मारा। डिपो मैनेजर B रवि गौड़ को अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया। मजीद कार्रवाई के लिए थर्ड टाउन SI के हवाले किया। कांग्रेस कायदीन ने रुद्रपुर में MLC उम्मीदवार की कामयाबी के लिए घर घर जाकर जोरों शोर से मुहिम चलाई। ग्रेजुएट्स कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को वोट दें।
एमएलसी इंतखाबात के हिस्से के तौर पर कांग्रेस कायदीन ने रुद्रपुर गांव में घर घर मुहिम चलाई। कांग्रेस एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को वोट देने की अपील की और पंफलेट देकर बेदारी पैदा की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र रेड्डी को जितवाकर हम अपनी बात को हुकूमत के इल्म में लाएंगे और नौकरियों और नौजवानों से मुतल्लिक स्कीमों को हासिल करेंगे। इस मुहिम में कांग्रेस कायदीन पीर रामू, इमरान, कारकुन दीगर भी मौजूद थे। तहसीलदार नॉर्थ की मुबैना जहर अफशानी पर मजलिस निजामाबाद का एहतजाज, मुस्लिम तबके पर नाजिबा रिमार्क्स की शिकायत। नॉर्थ तहसीलदार निजामाबाद एस नागार्जुना की जानिब से मुबैना तौर पर एक मुस्लिम नौजवान से मुस्लिम तबके के मुतालिक जहर अफशानी की शिकायत पर मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने शदीद बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक शहर के फुलांग इलाके का मुस्लिम नौजवान मुकर्रम रजा की जानिब से पुराने राशन कार्ड से नाम को हज़फ करने दस्ती फॉर्म के जरिए मुतल्लिका नॉर्थ तहसीलदार की दस्तखत लेने उनके ऑफिस पहुंचने पर तहसीलदार ने मुस्लिम तबके पर नाजिबा रिमार्क करते हुए ज्यादा बच्चे पैदा करने, हुकूमती स्कीमों से फायदा उठाने, ऑफिसों में मनमानी और परेशान करने के इजहार पर मुकर्रम रजा ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के कायदीन को वाक़ई की इत्तला दी। आज सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फासिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीके मोतमद एजाज हुसैन, साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अब्दुल लतीफ ने मुकर्रम रजा के हमरा तहसीलदार नॉर्थ ऑफिस पहुंचकर नागार्जुना की नाजिबा रिमार्क पर शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तहसीलदार जैसे अहम ओहदे पर फाइज रहकर किसी तबके के मुताल्लिक नाजिबा रिमार्क करना काबिल मजम्मत है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मुबैना नाजिबा रिमार्क पर मुसलमानों से माफ़ी मांगी जाए, बसूरत दीगर आला सतह पर शिकायत और एहतजाज किया जाएगा। नॉर्थ तहसीलदार नागार्जुना ने बादशाह मुसलमानों से माफ़ी मांगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मुकर्रम रज़ा है। मैं कल यहाँ नॉर्थ एमआरओ के पास आया था राशन कार्ड का नाम डिलीट कराने के लिए, तो एमआरओ साहब जैसे कुछ गलत वर्ड यूज़ करे कि तुम ना मुसलमान दाढ़ी टोपी रख के ऐसी गलत कामा करते। 4 साल से अब तक कहीं डिलीट नहीं कराए नाम, अब तक तो 4 साल से फुकट चावल खाए और तुम चावल ना बेच के खा लेते बोल के बोल रहे, और 100 स्कीमा तुम्हारा कुछ होना बोल के ऐसा गलत वर्ड यूज़ करे, और 10-10 बच्चे पैदा करते तुम लोग चूक के आ जाते ऐड करो डिलीट करो बोल के ऐसा गलत वर्ड यूज़ करे। तो मैं MIM पार्टी के हमारे फयाज भाई शकील भाई से रब्ता करा, उनको बोला तो उन्होंने फिर आके यहाँ पर MRO साहब से बात करे तो MRO साहब गलती अपनी कबूल कर लिया। हाँ मैं बोल दिया ऐसा बोल के, बोले नेक्स्ट टाइम नहीं बोलते बोल के बोले ऐसा माफ़ी चाहता बोल के माफ़ी मांग लिए, आइंदा नहीं बोलते बोल के बोले ऐसा। मैं शुक्रिया करता हूँ तमाम MIM के हमारे कारपोरेटर्स का जो मुझे सपोर्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970।
वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस पार्टियों की साजिशों को बेनकाब करने के बाद भी बीजेपी एमएलए और कायदीन झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर अवाम को गुमराह करने का काम कर रहे। बीजेपी एमएलए खौफजदा है कि अवाम को हक़ाइक़ मालूम हो गए। जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानला मोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। शहर के कांग्रेस भवन में मुनाकिदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में डीसीसी सदर और रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के 14 महीनों में बीसी जात की मर्दमशुमारी, एससी की दर्जेबंदी, किसानों के लिए कर्ज माफी, रैतू बोनस, राशन कार्ड की तकसीम, इंदिरा मकानात, खवातीन के लिए मुफ्त बस स्कीम, जियो यूनिवर्सिटी जैसी सहूलतों को नाफिज किया गया। नौजवान हिम्मत से सोचें और कांग्रेस पार्टी को वोट दें। मोहन रेड्डी ने कहा कि धनपाल सूर्यनारायण और राकेश रेड्डी जो वज़ीर आला के अल्फाज से परेशान थे, कहा कि रेवंत रेड्डी झूठ बोल रहे, लेकिन उन्हें एक बार सोचना चाहिए। रेवंत रेड्डी गारी माटलकु निन्नటి వరకు ఉద్ది మాటలకే మేము లీడ్ ఇస్తామని చెప్పినటువంటి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఒక్కసారి కమ్ము తినడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ముఖ్యమంత్రి గారు అబద్ధం మాట్లాడారని, ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వలేదని చెప్పినటువంటి వీళ్లకు మీకు బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటే మీరు తెలుసుకోండి. ముఖ్యమంత్రి గారే ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేసింది ఓటర్లకు, నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే మాకు ఓటు వేయకండి అని. మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిండ్రు, వాస్తవాలు ఆలోచించండి, పట్టభద్రులకు ప్రభుత్వానికి మధ్యన వారధిగా ఉండాలంటే నరేందర్ రెడ్డి గెలిపియమని చెప్పిండు. నరేందర్ రెడ్డి ఓటమనేది ప్రభుత్వానికో మా పార్టీకో నష్టం కంటే పట్టభద్రులకు నష్టం అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పినట్టు దాన్ని ముఖ్యమంత్రి చెప్పిండు. నరేందర్ ఓడిపోతే మాకేం, నరేందర్ రెడ్డి ఓడిపోతే మాకేం కాదని పిచ్చి ప్రయోగాలు చేస్తున్నటువంటి ధనపాల్ సూర్యనారాయణ కావచ్చు, అదేవిధంగా రాకేష్ రెడ్డిలు మీరు వాస్తవాలకు దిగి రాగలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా రేపు 27వ తేదీ నాడు జరిగే పోలింగ్లో పట్టభద్రులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र शराब की दुकानें और बार इस माह की 25 तारीख को शाम 4 बजे से 27 तारीख की शाम 4 बजे तक बंद रहेंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एक्साइज हुक्काम का बयान। एक्साइज हुक्काम ने एक बयान में कहा कि एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र शराब की दुकानें, बार इस माह की 25 तारीख को शाम 4 बजे से इस माह की 27 तारीख को शाम 4 बजे तक बंद रहेंगी। उन्होंने शराब के ताजरों और अवाम से कहा कि वो इस मामले का नोटिस लें और खबरदार किया कि अहकामात के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा के हुक्म पर टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर अंजया और स्पेशल पार्टी के एहलकारों थट्टाम पुलिस स्टेशन के तहत कंटेश्वर में कल्लू डिपो सेंधी शॉप पर छापा मारा। डिपो मैनेजर बी रवि गौड़ को अहकामात के खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया। मजीद कार्रवाई के लिए थर्ड टाउन एसआई के हवाले किया। महाशिवरात्रि के मौके पर 27 तारीख को आरमोर आरटीसी डिपो से वेमलवाड़ा खुसूसी आरटीसी बसें चलाई जाएंगी। अकीदतमंद आरटीसी बसों से फायदा उठाए। आरमोर टीजीएस आरटीसी डिपो मैनेजर रवि कुमार का बयान। आरमोर टीजीएस आरटीसी डिपो मैनेजर रवि कुमार ने बताया कि महाशिवरात्रि के मौके पर मंगल से 27 तारीख को आरमोर आरटीसी डिपो से वेमलवाड़ा तक खुसूसी आरटीसी बसें चलाई जाएंगी। आरमोर आरटीसी दफ्तर में डिपो मैनेजर रवि कुमार ने कहा कि आरमोर डिपो से 3 दिनों तक 100 आरटीसी बस ट्रिप्स चलाई जा रही। मंगल को 15 आरटीसी बसों के जरिए 30 ट्रिप्स, 26 तारीख को महाशिवरात्रि को 20 आरटीसी बसों के जरिए 40 और 27 तारीख को 20 आरटीसी बसों के जरिए 30 ट्रिप्स चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आरमोर से वेमलवाड़ा तक आरटीसी बस का टिकट बड़ों के लिए 220 रुपये और बच्चों के लिए 120 रुपये। उन्होंने अकीदतमंदों से कहा कि वो आरटीसी बसों से फ़ायदा उठाएं। मज़ीद तफसीलात के लिए आरटीसी बस स्टैंड सेल नंबर 7382843133 पर कॉल करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। वेमलवाड़ा जाने वाले अकीदतमंदों के लिए टेंट और पानी का इंतजाम रखा गया है। శివరాత్రి సందర్భంగా వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళే భక్తుల సౌకర్యార్థం మన ఆర్మూర్ నుంచి ప్రత్యేక బస్సులు నడపబడుచున్నవి. ఇటు బస్సుల్లో పెద్దలకు 220 రూపాయలు మరియు పిల్లలకు 120 రూపాయలు ఛార్జీ వసూలు చేయడం జరుగుతుంది. కావున భక్తులు
మన ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించి సురక్షితంగా దైవదర్శనం చేసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. ప్రైవేటు బస్సులు ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయించకుండా ఆర్టీసీ బస్సులోనే ప్రయాణం చేయగలరు. అలాగే ఈరోజు 20 బస్సులు నడిపించడం జరుగుతుంది. ఇటు బస్సులు ప్రయాణికులకు సరిపోని ఎడల ఇంకా పెంచడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఇవాళ రేపు మరి ఎల్లుండి కూడా ఈ 3 రోజులు కూడా మన వేములవాడకు స్పెషల్ బస్సులు మన ఆర్మూర్ నుంచి నడపబడతాయి. కావున ఈ అవకాశాన్ని భక్తులందరూ వినియోగించుకోవాలని చెప్పి निर्मला हुदय स्कूल में जिले सतह पर साइंस फेयर का इनेकाद। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। माशरे में तब्दीली उसी वक्त आएंगी जब साइंसी सोच में इजाफा होगा। कायदीन ने किया खिताब। शहर के निर्मला हुदय स्कूल में जिले सतह पर साइंस फेयर का इनेकाद किया गया। मल्लू स्वराज्यम ट्रस्ट, ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा साइंस फेयर का बड़े पैमाने पर आगाज हुआ। जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत की और मजमून नवेसी और पोस्टर साजी के मुकाबलों का इनेकाद किया। इस मौके पर जन विज्ञान वेदिका के रियासती सदर एन रामाराव ने कहा कि सर CV रमन के दरियाफ्त करदा मौके पर 28 फरवरी को कौमी सतह पर यौम साइंस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तलबा में साइंसी सोच को बढ़ाने के लिए हर साल साइंस डे प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। इसका एहतमाम इस तरह किया जाता है कि मजमून नवेसी, लेक्चरर मुकाबला, पोस्टर साजी और साइंस फेयर के जरिए साइंस और तकनीकी पहलुओं के बारे में सोचने के काबिल बनाया जाता है। मल्लू स्वराज्यम ट्रस्ट और ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन के कायदीन राम मोहन राव और गंगा किशन ने कहा कि आने वाली नस्लों को एक बेहतर मुआशरा फराहम करने के लिए तलबा की ज़हनियत में तब्दीली लानी होगी। उन्होंने कहा कि मुआशरे में तब्दीली उसी वक्त आएगी जब साइंसी सोच और फलसफा बढ़ेगा। ये इंकशाफ किया कि जीतने वाले तलबा को शाम के अख्तितामी प्रोग्राम में DEO के हाथों नकद इनामात दिए जाएंगे। उन्होंने निर्मला हुदय स्कूल की इंतजामिया और अमले का ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इन मुकाबलों में तलबा और असातिज़ा ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। मुकाबलों के बाद फातिहीन का इंतखाब किया गया। इस प्रोग्राम में प्रसाद राव, श्रीनिवास, मदन मोहन दिगर भी मौजूद थे। వాటి యొక్క అంటే ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఎయిర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు అవి ఢీ కొట్టడం వల్ల చెల్లా చెదరవుతాయి. ఆ చెల్లా చెదరైన దాన్ని విక్షేపణము అన్నారు. ఆ విక్షేపణం చేయబట్టి ఎక్కువగా బ్లూ కాంతే విక్షేపణం చెందుతుంది. వైలెట్ అవుతుంది, బ్లూ అవుతుంది. కానీ వైలెట్ మన కన్ను సెన్స్ చేయదు, బ్లూనే సెన్స్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఆకాశం బ్లూగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అతను కనిపెట్టడం జరిగింది. అతని పేరు మీదనే అతను కనిపెట్టాడు కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్. దీనికి అతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది 1930లో. మన భారతీయ శాస్త్రవేత్త నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది కాబట్టి భారతదేశంలో విద్యార్థుల్లో ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథము, ఆలోచన, ప్రశ్నించే స్వభావం వీటన్నిటిని పెంచాలి అని అంటే అప్పుడు NCT యొక్క ప్రతిపాదన మేరకు భారత ప్రభుత్వం డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది పిల్లలకు ఒక మంచి ప్లాట్ఫాము. ఈరోజు అంటే అనేక పండుగలు వస్తాయి మనకి, రిలీజియస్ పండుగలు, కానీ ఒక ఆలోచన ఇవ్వగలిగేది విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు, విద్యారంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి దినోత్సవము. అందుకోసం అని చెప్పేసి జన విజ్ఞాన వేదిక మరియు మల్లు स्वराज्यम ट्रस्ट पेंशनर्स। कामारेड्डी जिला रामेश्वर पल्ली के रहने वाले 10 साल 2 बच्चों की गड्ढे में गिरने से मौत। साइकिल चलाते हुए दूसरे मुकाम जाने के दौरान ये वाकया पेश आया। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कामारेड्डी टाउन म्यूनिसिपैलिटी के तहत रामेश्वर पल्ली के मसफाती इलाके में एक सानिहा पेश आया। कामारेड्डी जिला हेडक्वार्टर के ग्रीन सिटी में रहने वाले 10 साल संतोष और शिवा घर के सामने खेल रहे थे। वो साइकिल पर सवार होकर करीबी गांव पुंटे जा रहे थे कि इत्तेफाकन गड्ढे में गिरने से दोनों की मौत हो गई। बच्चों की नाश को कामारेड्डी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। MLC इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इक़दाम किए गए। जिला कलेक्टर। हजार लीटर खदीम सेंधी की फरोख्तगी पर टास्क फोर्स के ओहदेदारान का सेंधी शॉप पर छापा। मैनेजर को क्या गिरफ्तार।
तहसीलदार की मुबैना तौर पर मुस्लिम तबके के मुतालिक सहरफशानी पर MIM वफद का एहतजाज, नाजेबा रिमार्क्स की शिकायत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।